हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही वास्ट और बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही याद करने वाला, मतलब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी इसको 7 पार्ट में डिवाइड करती है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस कैसे वो बनता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, as you were aware, humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive event in human include formation of gamete, gametogenesis, sperm in male, ovum in female, transfer of sperm into female genital, and fusion of male and female gamete, fertilization, leading to the formation of zygote. This is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation, and the delivery of the baby, pasteurization. You have learned that these reproductive events occur after puberty. These are remarkable difference between the reproductive events in male and female. For example, the sperm formation continues even in old men, but the formation of ovum increases in women around the age of 50 years. Let us examine a male and female reproductive system in human. A male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. ठीक है, it includes a pair of testes along with the accessory duct, glands and external genitalia. ठीक है, the testis is situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. ठीक है, the scrotum help in maintaining the lower temperature of the testis. 2 से 2.5 डिग्री लोअर रहता है, उसी को मेंटेन करता है the normal internal body temperature. नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम रहना अनिवार्य है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद लेंथ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ईच ईच टेस्टिस, ये दोनों का बात नहीं कर रहा है, एक टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहते हैं, मतलब एक में 250 और एक में 250। ठीक है, मतलब टोटल 500। ठीक है, ईच लोब्यूल कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ईच लोब्यूल जो उसमें होता है उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं 2 से 3, इन विच द स्पर्म आर प्रोड्यूस, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड on inside by 2 types of cell: male germ cell, spermatogonia and Sertoli cell. The male germ cell undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation. Male germ cell है meiotic division करेगा और sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. और जो Sertoli cell है वो nutrient provide करेगा किसका, germ cell का. The region outside the seminiferous tubule is called interstitial spaces. Contain a small blood vessel and interstitial or Leydig cell. The Leydig cell synthesize and secrete testicular hormone called androgen. ठीक है, other immunologically component cell is also present. The male sex accessory duct are retitestis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens. ठीक है, the seminiferous tubule of the testis open into vasa efferentia through retitestis. ठीक है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो ऑफ द टेस्टिस ओपन कैसे होते हैं, वासा एफरेंसिया के थ्रू द रेटिटेस्टिस. Vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along with the posterior surface of each testis. ठीक है, the epididymis leads to the vas deferens and ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. ठीक है, it receive a duct from seminiferous vesicle open into urethra and as a ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through penis through its external opening called uretary meatus. देखिए ये क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म बताया है कि पाथवे ऑफ स्पर्म कैसे कैसे आता है। पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में रहता है, फिर रेटिटेस्टिस में आता है, रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया में आता है, वासा एफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में, यूरेटर। अब ये डायग्रामेट्रिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ये जो होगा
स्पर्माटोगोनिया जो ये हो गया, और स्पर्माटो जो है ये छोटा छोटा है, ठीक है, और ये जो हो गया ये सर्टोली सेल। The penis is the male external genitalia. It is made up of a special tissue that help in erection of penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis called glans penis. जो enlarged end of the penis है तब उसको glans penis कहते हैं. Covered by a loose fold of skin called foreskin. वो एक loose fold skin से covered होता है, उसको foreskin कहते हैं. The male accessory gland include a paired seminal vesicle, prostate and bulbourethral, pair bulbourethral gland, ठीक है. जो मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं वो पेयर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है. देखिए सेमिनल वेसिकल जो होता है पेयर्ड होगा, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड होगा, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये अनपेयर्ड होता है. अपोस्टेट ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, एक अनपेयर्ड कौन है? अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. ठीक है. These secretion of bulbourethral also help in the lubrication of penis. The female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, ureters, and cervix, vagina, and external genitalia located in the pelvic region. These part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childbirth. ठीक है. Ovary are primary female sex organ that produce the female gamete, ovum, and several steroid hormone, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन जिसको बोलते हैं. The ovary are located on one each side of the lower abdomen. Each ovary is 2 से 4 सेंटीमीटर in length and is connected to the pelvic wall by uterus by ligament. ठीक है, ये ओवरी है. अब ये यूटेरस जो है आपका यूटेरस है, तो यूटेरस से किससे? लिगामेंट से ये क्या होता है? अटैच होता है. Each ovary is covered by thin epithelium which includes the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, cervical cortex and inner medulla. ठीक है. देखिए इसमें क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेमरी ग्लैंड इनका मेन वो होता है. ठीक है, इनके दोनों साइड ओवरी होती है जो ओवम सिक्रेट करती है हर मंथ अल्टरनेट मैनर में, और उसी से वो होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है, यही सब है. और ये जोन दो इनर कॉर्टेक्स, मेडुला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होते हैं. ठीक है. The oviduct, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory duct. ठीक है, oviduct जिसको fallopian tube कहते हैं, uterus और vagina constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is 10 से 12 सेंटीमीटर long and extend from periphery of each ovary to uterus. ठीक है, the part closer to ovary is funnel cell infundibulum. Part closer to ovary is a funnel cell infundibulum. The edge of the infundibulum possesses a finger-like projection called fimbri. उसको fimbri कहते हैं, which help in the collection of the ovum after ovulation. The infundibulum, ठीक है, ये इस्तमस आपको दिख रहा है, एम्पुला दिख रहा है, इनफंडिबुलम दिख रहा है, फिम्बरी दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है, सर्विक्स दिख रहा है, सर्वाइकल कनाल, वेजाइना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, यूटेरस के वाल हो गए, फ्लाइपोपियन ट्यूब, इनको मिला के कहा जाएगा यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन फंडस. ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. part of oviduct is called ampulla, fula, ampulla. The last part of oviduct, isthmus, is a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is single, ठीक है, and it also called worm इसको कहते हैं. ठीक है, the shape of the uterus is like inverted pear. Inverted pear के मतलब pear को inverted कर दिया जाए तो उसके जैसा इसका shape रहता है, inverted shape. It's supported by ligament attached to the pelvic wall. ठीक है, uterus open into vagina through a narrow cervix. ठीक है, uterus vagina में open होता है narrow cervix. The cavity of the cervix इसका सर्वाइकल कैनाल. सर्विक्स के कैविटी को क्या कहेंगे? सर्वाइकल कैनाल. विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल. देखो सर्विक्स अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल. ठीक है, और द कैविटी ऑफ सर्विक्स इसका सर्वाइकल कैनाल. ठीक है, द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम. देखिए 3 लेयर होते हैं यूटेरस के, पेरी, मायो, एंडो. ठीक है,
पेरीमेट्रियम थिन होता है, एक्सटर्नल लेयर होता है सबसे आउटर, और मिडिल वाला थोड़ा थिक होता है, मायोमेट्रियम कहते हैं, और इनर वाला ग्लैंड सेक्रेट करता है, ग्रैंडुलर लेयर होता है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम undergoes cyclic change during the menstruation cycle, while the myometrium exhibit a strong contraction during delivery। अभी भी important point है। देखिए एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर लेयर होता है और वो ग्लैंडुलर भी है, मतलब वो ग्लैंड्स भी कैरी करेगा, तो उसके पास हार्मोन्स वगैरह ये सब चीज भी रहेंगे, तो वो क्या करेगा, वो साइकिल चेंज जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंज, उसको वो मेंटेन करेगा कौन, एंडोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करेगा जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगा उस टाइम पे, मायोमेट्रियम का ये काम होता है, ठीक है। हम देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है वो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस इंक्लूड करिए। मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस इज अ क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस एक क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू है, ठीक है, जो कवर्ड स्किन और प्यूबिक हेयर, ठीक है। लिबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। लिबिया मेजोरा जो है फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। लिबिया माइनोरा आर पेयर फोल्ड टिश्यू अंडर लिबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन covered partially by the membrane called hymen. The opening of vagina often covered partially by a membrane called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two. Clitoris जो है वो tiny finger-like structure है which lies at the upper junction of two labia minora above uteral opening. The hymen is often broken down during course, ठीक है। देखिए हाइमेन जो है वो ब्रोकन, हाइमेन का ब्रोक होना एक यही नहीं है कि ये वर्जिनिटी है, मतलब हाइमेन मतलब कई और भी कारणों से ब्रेक हो जाते हैं फीमेल्स में, जैसे कि कोई फीमेल्स अगर हॉर्स राइडिंग की हो, साइकिलिंग की हो, स्पोर्ट्स खेली हो बहुत, तो उसमें भी चांसेस है कि हाइमेन्स की ब्रेक हो सकती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है वर्जिनिटी का। और आपने और सब पढ़ ही लिया कि लिबिया मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, लिबिया मेजोरा क्या होता है, लिबिया माइनोरा क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, सब चीज। और जो यहाँ इसका जो क्लाइटोरिस है ना वो होमोलोगस है हमारे पेनिस के। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए ड्रामेट्री सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इनमें क्या क्या होता है ये पढ़ लेंगे। A functional mammary gland is characteristics of all female mammals, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ये मेल में अनफंक्शनल होते हैं। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड ब्रेस्ट, ठीक है, दैट कंटेन अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। जो ब्रेस्ट होता है जो वो पेयर्ड में होता है, मतलब दो ब्रेस्ट होते हैं और वो ग्लैंडुलर होता है, मतलब उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स उसमें रहता है। आपको सबको पता है क्योंकि मदर मिल्क में फैट्स वगैरह ये सब प्रेजेंट रहते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब। पहले मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेलाई, उसके बाद एल्वेलाई। द सेल ऑफ द एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क, जो एल्वेलाई का सेल है वो मिल्क सीक्रेट करेगा विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमेन। एल्वेलाई में जो मिल्क रहेगा वो स्टोर रहेगा। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, अब ये ट्यूब्यूल्स मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन रहेंगे। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। अब ट्यूब्यूल्स के द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्फुला, फुला एम्फुला which is connected to the lactiferous duct through which secret milk। देखिए क्या क्या है, पहले 15 से 20 मेमोरी लोब, ठीक है, कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है। द सेल ऑफ द एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क, ठीक, which is stored in the cavity called lumen of जो एल्वेलाई की, ठीक है। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, such memory duct join to form wider memory ampulla
which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब ये होता है ना कि मेल में स्पर्मा मतलब कोई बड़ा चीज रहेगा उससे फिर स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में क्या होगा ओवा का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, इसको क्या कहेंगे मेमोरी, इसको क्या कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है गैमेटोजेनेसिस किसको कहेंगे, स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन मेल और फीमेल में, इसको कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस that begin at puberty। ठीक है स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल multiply by mitotic division and increase in number। The spermatogonia is diploid and contain 46 क्रोमोसोम। ठीक है देखो स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है ईच स्पर्मेटोगोनियम जो ये है is diploid and contain 46 chromosomes। ठीक है some of the spermatogonia are called primary spermatocytes। ठीक है periodically undergo meiosis। ठीक है अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सम देखिए सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड, स्पर्मेटोगोनिया को ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो जिसका मियोसिस होता है डिवीजन होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है पहला जब मियोटिक डिवीजन हुआ मतलब पहला जब डिवीजन हुआ तो वो टू इक्वल हाफ में प्रोड्यूस किया, उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास ओनली 23 क्रोमोसोम्स है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ 46 क्रोमोसोम थे, डिप्लॉयड था और ये हैप्लॉयड हो गया क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मेटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, और ये जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने वो डिवीजन करके 4 स्पर्मेटिड को प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पर्मेटिड, आपको पता ही चल गया। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म कैसे फॉर्म हुआ, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्म। ठीक है जो ये अब स्पर्मेटिड है उसको फाइनल किस स्टेज पे लाना है स्पर्म में, वो कैसे होगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत बार पूछा गया व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, चाहे पूछ देगा कि तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्म क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे ट्रिक करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, अब जो स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो गया है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फाइनली रिलीज हो जाएगा सेमिनिफेरस में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकल जाना स्पर्मिएशन, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है प्राइमरी से सेकेंडरी बनना, प्राइमरी से पहले सेकेंडरी बनता है, मियोटिक डिवीजन में मतलब माइटोसिस से मियोसिस से, और पहले 46 क्रोमोसोम रहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, फिर 23 हो जाते हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा और उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, सबको पता है हम लोग में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएस। ठीक है जीएनआरएस के इंक्रीज होने से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। दिस इफ यू रिकॉल is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRS then act at the anterior pituitary and stimulate the secretion of gonadotropin, ठीक है luteinizing hormone and FSH। ठीक है LH act on at the Leydig cell and stimulate the synthesis and secretion of androgen। ठीक है LH जो होता है
acts on the Leydig cell and stimulate the synthesis in androgen, in turn stimulate the process of spermatogenesis. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. ठीक है. FSH acts on the Sertoli cell. FSH Sertoli cell पे act करता है and secrete some of the factor which help in the process of spermiogenesis. कुछ फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है वो FSH हेल्प करता है. ठीक. Let us take a structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. ठीक. A plasma membrane in all the whole body of the sperm. ठीक है. The sperm head contain a elongated haploid nucleus. ठीक है. The anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. जिसका anterior portion acrosome होता है. The acrosome filled with enzyme that help in fertilization of ovum. The middle piece process numerous mitochondria. Middle piece में numerous mitochondria होते हैं which produce energy for the movement of the tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates about 200 से 300 million sperm during the coitus of which normal fertility. ठीक है. At least 60% of the sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. देखिए 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप और जो 40%, देखिए बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है 60-40 क्या, जो 60% का 40% विग्रास मोटिलिटी शो करेगा, 60 का 40 है, ऐसा नहीं कि वो 100 का 40 है. ठीक है. Sperm released from the seminiferous tubule are transported by accessory duct secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostaglandin are essential for maturation and motility of sperm. The seminiferous plasma, along with the sperm, constitute the semen. The function of the male sex accessory duct and the gland are maintained by testicular hormone androgen. The process of formation of mature female guy is called oogenesis. ठीक है. अब गैमेटोजेनेसिस देख लिया, मतलब स्पर्म का देख लिया, अब फीमेल का थोड़ा देखना है. ठीक है. अब फीमेल का, the process of the formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of menial gamete mother cell oogonia are formed with each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. ठीक है. The cell start division and enter into the prophase 1 of the mitotic division and get temporarily arrested at this stage and called primary oocyte. ठीक है. टेम्परली वहां पे अरेस्ट हो जाएगा और उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. The large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, the puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. देखिए पहले the process of mature female के oogenesis कहेंगे. ठीक है. oogenesis initiated due to the embryonic stage का पढ़ मिनियम कई गैमेट एक एक को oogonia कहेंगे. ठीक है. बर्थ के बाद कोई oogonia फॉर्म नहीं होगा. ठीक है. और ये जो सेल है वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाएगा. ठीक है. मिटोटिक डिवीजन में गेट टेम्पोररी अरेस्टेड है प्राइमरी oocyte के फॉर्म में. ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल का प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है. A large number of these follicles degenerate during the phase of the birth puberty. ठीक है. Therefore, it is the puberty में 60,000 to 80,000 primary follicles lived in each ovary. Each ovary में 60,000 से 80,000 primary follicles बचे रहते हैं. ठीक है. The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca and are called secondary follicle. और जो new theca उसको secondary follicle. The secondary follicle soon transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum. The theca is organized into inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is the stage that the primary oocyte, which is within the tertiary follicle, grow in size and complete the first mitotic division. It is unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and tiny first polar
body, ठीक. The second oocyte retain bulk nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte, ठीक है. Does the first polar body born out of the mitotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certainly about this. The tertiary follicle further change into mature Graafian follicles. The secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now rupture to release secondary oocyte from the ovary, and the process is called ovulation.